press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ناظرین محبین، ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان اگر نہیں ہے تو عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بنام مسلم دنیا میں جتنے بھی مذاہب قائم و آباد ہیں، ہر ایک کا تصور ایمان یہی ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار یہ ایمان ہے، تو ایمان ہی اصل ہے۔ الایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصل ایمان یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو دل سے تسلیم کرنا جنہیں اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر تشریف لائے، یہ اصل ایمان ہے۔ تو ایمان تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ ایک مولانا جس کا نام مجھے معلوم نہیں، دوران تقریر انہوں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج تک آپ نے سنا کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جمعہ ترک کرنا فرض ہے۔ اس پر مولوی امتیاز پلاموی اور اس کے گروپ کے تمام افراد کو مرچی لگی اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف الٹا سیدھا بکنا شروع کیا اور کہا، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اپنی عوام کے لیے دنیا تنگ کر دی ہے اور انہیں کنویں کا مینڈک بنا کر کے رکھ دیا، وہ اس طریقے سے کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنا دیا۔ کہ اعلیٰ حضرت نے بریلویوں کو پوری دنیا میں ذلیل کر دیا، تنگ کر دیا، دنیا تنگ ہو گئی، اور بریلویوں کے بارے میں کہا کہ یہ کنویں کے مینڈک ہے، اور یہ سمندر کیا مینڈک ہے، یہ بہت بڑا مینڈک ہے، یہ سمندر کا لگتا ہے کہ بہت بڑی دنیا اس نے دیکھی ہے۔ حالانکہ دیوبندیوں کی بنیاد جھوٹ اور دغا پر مشتمل ہے۔ میرے ویڈیوز پر کچھ لوگ الٹا سیدھا کمنٹس کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ سب اختلافی باتیں کیوں چھیڑتے ہو، وہ باتیں پیش کیا کرو جس سے دنیا والوں کو اسلام کی حقانیت سامنے آئے۔ بھائی، اسلام کی حقانیت کو ہی سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان کے نام پر اسلام کے روپ میں آ کر اسلام کے خلاف بکے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دینا ہر فرد مسلم کا دینی فریضہ بنتا ہے، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق۔ اور یہ مولوی امتیاز پلاموی بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا دغا ہے نا، کسی کتاب میں یہ دکھا نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا ہو کہ پوری دنیا کے مسلمان کافر ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جمعہ فرض ہے، سنا ہے نا؟ اب اعلیٰ حضرت کی کتاب سے میں سنانے جا رہا ہوں، جمعہ کا چھوڑنا فرض ہے۔ کتنے جھوم رہے ہیں لوگ، جمعہ چھوڑنا بھی فرض ہے۔ سنا؟ ہاں، مولانا نے جو کہا کہ جمعہ کو چھوڑنا فرض ہے، تو صرف یہی کہا انہوں نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جن کے عقیدے خراب ہے، جو بد عقیدہ ہے، ایسی بد عقیدگی جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے وہ اگر بریلوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، قادیانی ہو، ہے نا، اگر بریلوی کا بھی اگر کسی کا عقیدہ ایسا ہو جیسا کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، وہ عقائد جن عقائد کی بنیاد پر حرمین طیبین کے علماء کرام نے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اور تمام کے تمام اکابرین اسلام نے ان کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ اور واضح رہے، میں کلیئر کٹ بول دینا چاہتا ہوں کہ عام دیوبندی جن کو دیوبندی عقیدے سے کوئی خبر نہیں ہے، وہ لاپتہ ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ دیوبندیت ہے کیا۔ وہ جس محلے میں رہے، جہاں رہے، انہیں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اگر بریلوی مسلک کے امام کے یہاں وہ رہنے لگے تو ان کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں، دیوبندیوں کے یہاں رہنے لگے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اصل بنیاد ہے کیا جھگڑے کی، دیوبندی اور بریلوی کے درمیان جھگڑے کی اصل بنیاد کیا ہے۔ یا نبی سلام علیہ کھڑے ہو کر کے قیام کرنا، درود پڑھنا، فاتحہ کرنا، تیجا چالیسا، مزار زیارت، 11ویں شریف کرنا، 12ویں شریف کرنا، یہ مراسم اہل سنت سے ہے۔ یقیناً بریلوی حضرات ان چیزوں کو محبت کی علامت سمجھ کر کے کرتے ہیں، مگر یہ جھگڑے کی اصل بنیاد نہیں ہے۔ اصل بنیاد وہ گندے عقائد ہے تمہارے مولویوں کے، اور خبیث وہ عبارتیں ہیں تمہارے مولویوں کی، جن خبیث عبارتوں کی قیامت تک کوئی دور دور تک تعویل نہیں ہو سکتی۔ ان خبیث اور گندی عبارتوں کی بنیاد پر علماء حرمین طیبین نے ان کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ مثال کے طور پر یوں کہنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں کی طرح ہے، یعنی حضور کے علم غیب پاک کو جانوروں سے تشبیہ دی۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر نبی کے لیے غیب کا علم مانو گے تو یہ شرک ثابت ہو جائے گا، اور اگر شیطان کے لیے مانو گے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے بلکہ یہ دلیل سے ثابت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا
ختم नबूवत का इनकार करना, यूं कहना कि अगर आपके ज़माने के बाद भी कोई नबी आ जाए तो आपकी ख़त्म नबूवत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ख़ातमियत मुहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए, जब भी हुजूर ही ख़ातिम रहेंगे, तो ये तो सही कुरानी आयत का इनकार है। इस तरह और भी बहुत सारी वो इबारतें हैं। इंशाअल्लाह मैं कभी इस टॉपिक को लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर होऊंगा कि वो कौन अकायद हैं, वो कौन सी खबीस इबारतें हैं जिन इबारतों की बुनियाद पर देवबंदी और बरेलियों के दरमियान एक बहुत बड़ा खत इम्तियाज़ है। और बरेलवी हजरात वो कहते हैं, फिर मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि आम देवबंदी को आला हज़रत काफिर नहीं कहते और देवबंदियों के तमाम लोगों की तकफीर बिल्कुल नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको गुमराह कहा जा सकता है। हाँ, वो खबीस इबारतें, जिन खबीस इबारतों की बुनियाद पर अभी अभी मैंने जो मिसाल के तौर पर कुछ इबारतें पेश की हैं, इस तरह की इबारतों के वजह से ही अहले दयाबना की तकफीर की गई है। हालांकि इन तमाम इबारतों को जो आम आदमी हैं उन बेचारों को पता नहीं है, इसलिए उन पर तकफीर का हुक्म नहीं है। लिहाजा तुम्हारा ये बोलना कि बरेलवी मजहब के बानी मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान दुनिया के तमाम मुसलमानों को काफिर करार देते हैं, ये आपका झूठ और फरेब और धोखा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और मौलवी साहब, ज़ाहिर सी बात है कि मौलाना साहब ने जो कहा है वो मसला सही बताया है। अगर शिया हो, खुद तुम्हारे मौलवियों ने भी कहा है कि शिया अगर कुफरी अकायद रखते हो तो उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। एक फतवे में है कि बरेलवियों की तकफीर नहीं करते, और फिर एक फतवे में है कि नहीं, अगर उनकी बिदअत हद कुफर को पहुंची हुई है तो उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। अरे तुम खुद कह रहे हो कि उनकी तकफीर हम नहीं करते, फिर कह रहे हो कि अगर हद कुफर को पहुंची हुई है। ये दोगलापन की बात है, ये दोहरा मेयार क्यों तुम लगा रहे हो? खैर, तो खुद तुम्हारे मौलवियों ने भी फतवा दिया है ना। गुलाम अहमद कादियानी और गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले वो तो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, तो बनामे मुस्लिम हर एक मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ने का जवाज तुम्हारे मौलवियों के यहाँ भी नहीं है। और हमारे यहाँ सफाई ज्यादा होती है, शफाफ इमाम होना चाहिए। अरे अगर कोई इमाम बदअमल हो, ऐसी बदअमली, ऐसा गुनाह जो कबीरा गुनाह हो, मिसाल के तौर पर वो हर एतबार से लायक फाइक इमाम है, मगर वो खुल्लम खुल्ला सूद खाता है, अकायद भी दुरुस्त हैं, सब ठीक है, मगर खुल्लम खुल्ला वो सूद खाता है, या नाउज़ बिल्लाह शराब पीता है, या नाउज़ बिल्लाह वो चोरी करता है, या नाउज़ बिल्लाह खुले बंदो वो गाली गलौज किया करता है, नाउज़ बिल्लाह उनकी निगाहें खराब हैं। अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना उनका बिल्कुल आम है। तो ऐसे के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी हर एक के यहाँ है, तुम्हारे यहाँ भी, हमारे यहाँ है। तो जब बदअमली की बुनियाद पर हर एक इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, चाहे जुमाही की नमाज क्यों ना हो, तो फिर अगर बदअकीदगी हो, और ऐसी बदअकीदगी कि जिसकी तावील की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जैसे कि तुम्हारे अकाबरीन की खबीस इबारतें हैं, आज तक उनकी कोई तावील नहीं बन सकी है और क़यामत तक बन भी ना सकेगी। लिहाजा उस तरह की अगर खबीस इबारतें और खबीस अकायद होंगे तो ऐसे अकायद वाले जहां भी नमाज पढ़ाएं उनके पीछे नमाज नहीं होगी। अब अगर जुमा के वक्त में कोई सीधा साधा मुसलमान ऐसे इमाम के यहाँ पहुंच गया और जुमा की नमाज खड़ी है और उनको पता है कि इनके अकायद खबीस अकायद हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जुमा नहीं पढ़ेगा, वो जुमा के बदले में वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा। ये तो सीधी और सादी बात है। अब तुम जैसे मौलवियों को क्या बताएं? इधर तुम आला हज़रत के बारे में गलाजतें उगाल रहे हो, और ये तुम्हारा मौलवी, ये मंजूर को देखो, मंजूर मिंगल पाकिस्तानी, ये आला हज़रत के बारे में क्या करेंगे? अल्लामा अहमद रज़ा खान के बारे में बहुत ज़हीन आदमी था, इसका कोई इनकार नहीं है। आप फतावा रज़विया देखें, उसकी किताबें देखें, लेकिन चूंकि पठानी उस पर गालिब थी, समझ रही है कि नहीं, पठानी उस पर गालिब थी, तो इसलिए इंसाइक्लोपीडिया ने, कासिम ने, जो इंसाइक्लोपीडिया कई लोगों ने तरतीब दी है, मैं इंसाइक्लोपीडिया कासिम उसकी आपको हवाला दे रहा हूँ। उसने लिखा कि काश कि ये बंदा तकफीरबाजी ना करता तो इस जैसा कोई बंदा नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। ज़हीन इंसान था, बिल्कुल ज़हीन था, तफरुदात अपनी जगह पर उसके, लेकिन वो कोई मामूली मौलवी नहीं था, समझ रही है कि नहीं, बड़ा ज़हीन आदमी था। उसकी किताबें आप दुर्र मुख्तार पर उसने जो लिखा है, समझे, उसको आप देख लें, जिद्दुल मुमतार उसको आप देख लें, फतावा रज़विया को देखें, उसके तर्जमे में बाज़ तर्जमों की तरफ जो इशारा करता है, कमाल करता है। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, हमने आपको हैरान और फ़िरेफ्त पाया अपने इश्क में। वाह, ज़लालत का माना गुमराही से नहीं किया, जैसे कि हमारे कुछ हज़रात ने किया। सुन लिया कि वो कोई छोटे मोटे आलिम नहीं थे, बहुत बड़े आलिम थे। उनकी किताब का मुताला करो, अरे तुम पढ़ो कुछ, तब तो तुमको पता चले कि आला हज़रत की ज़ात क्या है। आला हज़रत, अल्लाहु अकबर, अल हक़्क़ु मा शहिदत बिहिल आदा, हक़ वो है कि दुश्मन भी उसकी हक़ानियत की गवाही दे दे। ये देखो मंजूर मिंगल, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी के
है ना उलूम व फ़नून का इतराफ़ करते नजर आ रहे हैं, उनकी शख्सियत का उनको इतराफ़ है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत, कामिल शख्सियत है। और तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अकायद ख़राब क्यों नहीं है, तुम्हारी इबारतें खबीस क्यों नहीं है? तुम्हारे अकायद तो ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर कादिर है ना। और जब उलमाए हक और उलमाए रब्बानियीन, उलमाए अहले हक यानी बरेलवी उलमा जब तुम्हारी इन बातों को वाज़ेह करते हैं तो तुम कहते हो कि ये कहाँ पे लिखा है? फतवा रशीदिया में कहाँ लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? अरे जब किसी को किसी चीज़ पर कुदरत होगी, कुदरत उसी वक्त होगी जब इम्कान होगा। किसी चीज़ पर कुदरत का माना यह है कि वो मुमकिन है, वो मुमकिन है। अगर इम्कान नहीं तो कुदरत नहीं। इम्कान के बगैर किसी चीज़ को कादिर मानना, किसी चीज़ पर कुदरत तस्लीम करना, ये तो हिमाकत है, ये तो मुहाल है। अभी ये देखो तुम्हारे मौलवियों में एक अब्दुल वहीद कुरैशी है, इन्होंने एक मिसाल दी खुदाए ताला के झूठ पर कुदरत को तस्लीम करने के बाद कि कुदरत तो है झूठ बोलने पर मगर वो झूठ बोल नहीं सकता। और मिसाल क्या दिया? माँ और बीवी की मिसाल दे दी कि जैसे वो दोनों ही तो औरत है मगर जो मामला बीवी के साथ होगा वो माँ के साथ नहीं। बहुत सारे इलाकों में नाउज़ुबिल्लाह, 1000 बार नाउज़ुबिल्लाह, अपनी माँ के साथ अपना मुंह काला किए हुए हैं, मुंह काला किए हुए हैं। किसी चीज को हराम उसी वक्त कहा जाएगा और मना उसी चीज से किया जाएगा कि वो कर सकता है। हाँ, उसका करना सही है या गलत है ये अलग चीज है, जायज है या नाजायज है ये अलग चीज है, मगर किसी चीज पर रोक उसी वक्त लगती है, रोका उसी चीज से जाता है जिसको वो कर सकता है अगर वो करना चाहे। तो ठीक अल्लाह तबारक व तआला के लिए तुम कुदरत अलल किज़्ब मानते हो, अगर कुदरत अलल किज़्ब नहीं मानते तो अल्लाह कमजोर हो जाएगा। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और तुम्हारे ये मौलवी अब्दुल वहीद कुरैशी ने एक और मिसाल दी और कहा कि जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो दूसरा खुदा बना सकता है, तो तुम्हारा तो धर्म यही है। हालांकि एक बिलफेल होता है, एक बिलकुवा होता है। ये अगर मंतिक भी समझ लेते हो तो इसको समझ जाती। देखो, एक होता है कादिर होना, एक होता है करना। कादिर होना और होता है, उसको बिलवकूफ बिलफेल कर लेना और होता है। जैसे माँ औरत है या नहीं है? बताए, बीवी भी औरत है, तो क्या बीवी वाला मामला माँ से हो सकता है? हो सकता है, पर कर कोई नहीं सकता। जिगरा किसी का नहीं है, हो सकना और है, होना और है। तो हम कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ ये चीजें कादिर हैं। अल्लाह एक एक चीज पे खुदा झूठ बोलने पे कादिर है, लेकिन गलत काम खुदा करता नहीं। खुदा दूसरे खुदा बनाने पे कादिर है, लेकिन ये गलत कानून। तुम्हारा खुदा तो वो है कि जो झूठ बोलने पर कादिर है। तुम्हारा धर्म तो यह है कि इस नबी के बाद कोई नया नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारे इन गंदे अकायद के होते हुए है ना, अहले हक, उलमाए हक और अहले सुन्नत वल जमात आज की तारीख में मारूफ व मशहूर बरेलवी लोगों की नमाज कैसे हो सकती